Hello students, welcome you all to our first session of our chapter number 3, that is metals and non-metals. Yes students, today we are going to start with our new chapter, that is metals and non-metals. In this chapter we are going to study regarding the physical properties and chemical properties of metals and non-metals and some of their uses. Okay, so let's start with our chapter. Students, let us first of all discuss about the physical properties of metals. Okay, the listed pic which you can see gives us the physical properties of metals. Some of the physical properties are: first, metals are generally available in solid form. Metals are solids, generally solids, but there is an exception. Mercury is a metal but it is available in liquid form. ओके, मर्क्यूरी मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, बाकी सारे मेटल्स जो है हमको सॉलिड्स में अवेलेबल होते हैं. ओके, देन मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, दे आर वेरी हार्ड, बट हियर ऑल्सो देर आर सम एक्सेप्शंस. like metals like lithium, potassium, sodium, they are all very soft, okay, and they can be easily cut with the help of knife. Being metals, ये तीनों metals होने के बावजूद भी ये soft है. So second point is that metals are generally hard, but exception you should remember that lithium, potassium and sodium are soft. Then metals have metallic luster, or you can say that metals are lustrous. Lustrous means what? They possess shiny surface. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो एकदम न्यू मेटल होता है, जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है ना, दे हैव अ शाइनी सरफेस, ऊपर से चमकदार होते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड लस्ट्रस. देन कम्स मेटल्स आर मैलिएबल. मैलिएबल मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. हम लोग मेटल्स में से पतले पतले शीट्स या फॉइल बना सकते हैं. जैसे एल्यूमिनियम के फॉइल मिलते हैं, सिल्वर के फॉइल्स मिलते हैं ना. एल्यूमिनियम का फॉइल किस में यूज़ होता है? फूड को रैप करने में. ओके, तो ये जो पतले पतले फॉइल्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं मैलिएबल. हम मेटल्स को बीट कर करके इससे थिन फॉइल्स बना सकते हैं. ओके, दैट इज़ कॉल्ड मैलिएबिलिटी. देन कम्स मेटल्स आर डक्टाइल. Ductility property. Okay, what does it mean? It means that metals can be drawn into wires. We can form wires from metals. Copper के wires होते हैं, aluminium के wires होते हैं, silver के wires होते हैं. Okay, so this is that metals are ductile. So these two properties, malleable and ductile. Malleable means they can be made into sheets, and ductile means the wires can be drawn from them. Okay, then comes metals have generally high melting points. ओके, इनके मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेटल्स एकदम हार्ड होते हैं, सॉलिड, जैसे आयरन है, कॉपर है. इनको पिघलाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है. सो देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई. बट देर इज़ एन एक्सेप्शन दैट गैलियम एंड सीसियम. गैलियम एंड सीसियम हैव these are the two metals which have low melting points. इनके melting points बहुत low है. गैलियम एंड सीसियम are the metals which have low melting points and they melt in the palm of the hand. ओके, हमारे हाथ में ही वो क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं. जैसे आप गैलियम और सीसियम को हमारे हाथ में लोगे ना, तो हमारे हैंड के हीट, दे विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम आवर पाम एंड दे विल मेल्ट. सो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. एक्सेप्ट दीज टू, ऑल अदर मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. देन कम्स मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स. देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर ऑल्सो हाई. देन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट? मीन्स वॉट? they heat can pass through them. जैसे सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, these are all good conductors of heat, है ना. heat can pass through them, but there are exceptions. lead and mercury are poor conductors of heat. okay, lead और mercury क्या है? poor conductors of heat. then comes metals are good conductors of electricity, है ना. means what? electricity can pass through metals. okay, for example copper, silver, they are the best conductors of electricity. okay, then metals are sonorous. sonorous means when the metals are struck on any hard surface. किसी hard surface पे अगर metals को struck करोगे तो they produce ringing sound. जैसे टेम्पल्स में हम लोग बेल्स होते हैं ना, घंटियाँ बजाते हैं, तो कितना ज़ोर से आवाज़, उसके रिंगिंग साउंड आती है, तो वो क्या है? मेटल से ही बना होता है. सो मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर बीटन ऑन एनी हार्ड सरफेस. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. आपको प्रॉपर्टीज़ भी लर्न करनी है और उनके एक्सेप्शंस भी लर्न करने के. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. ओके,
So actually students, we have seen that metals are generally in solid form except mercury liquid में, but non-metals are available in all three forms. They may be solids, liquids or gases. Non-metals are available in all three forms. Okay, examples of solids are carbon, sulfur, phosphorus, etc. ये सारे solid non-metals है. Example of liquid non-metal is only one, that is bromine. Bromine is the only liquid which is of non-metal. Okay, then gases में क्या आता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा. These are all the gases which are non-metals. So in short, non-metals exist in all three forms: solids, liquids or gases. Then comes non-metals are generally soft. Non-metals क्या होते हैं? Soft. Metals क्या होते हैं? Hard. Non-metals क्या होते हैं? Soft. But इसमें exception है. Diamond which is an allotrope of carbon. Diamond is a form of carbon only. Carbon से ही diamond बनता है, but it is the hardest natural substance which we know. Okay, diamond एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो हार्ड है, बट बाकी सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. ओके, देन कम्स नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर. मतलब क्या? दे डोंट शाइन, दे डोंट हैव शाइनी सरफेस. ओके, मेटल्स के अंदर शाइनी सरफेस होता है, नॉन मेटल्स में नहीं होता है, बट एक्सेप्ट आयोडीन. आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट शाइन्स. आयोडीन के क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, पीसेस एकदम शाइनी सरफेस वाले होते हैं. देन नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, नॉट डक्टाइल. मतलब इसके थिन शीट्स भी नहीं बना सकते हैं और थिन वायर्स भी इसमें से नहीं बना सकते हैं. क्यों? बिकॉज नॉन मेटल्स को जैसे आप मारोगे वायर या शीट बनाने के लिए, वो टूट जाएंगे. दे आर ब्रिटल. ब्रिटल मीन्स ईजिली टूट जाना. Okay, so they are neither malleable nor ductile. We cannot form thin sheets or we cannot make thin wires from non-metals. Then non-metals which are solids and liquids have low melting point. Okay, the non-metals which are solids and liquids, they have low melting points and low boiling points. Okay, ये थोड़े से टेम्परेचर में ये क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं या बॉयल हो जाते हैं. Okay, then non-metals are bad conductors of heat. Heat cannot pass through non-metals. And then non-metals are bad conductors of electricity also, but there is an exception, that is graphite. Graphite is also a form of carbon. ये भी एक कार्बन का फॉर्म है, but graphite conducts electricity. Graphite नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. रेस्ट ऑल अदर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड द लास्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस. मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक ऑन एनी हार्ड सरफेस. ओके, ये कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है. सो दीज आर द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. स्टूडेंट्स, ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगर आप उसको कंपेयर करोगे, दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर. ओके, बट यू हैव टू रिमेंबर द एक्सेप्शंस इन ईच एंड एवरी केस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. स्टूडेंट्स ध्यान देना, एग्जाम में whether they are asking physical property or chemical property. If they are asking physical properties of metals, तो जो पहले डिस्कस किया वो लिखेंगे. एंड इफ दे आर आस्किंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, देन अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमको लिखने का है. ओके, देर आर मेनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इन डिटेल. द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. Metals generally react with oxygen to form metal oxides. Metal plus oxygen gives you metal oxide. Whenever a metal react with oxygen, it gives metal oxides. Okay, for example copper. Copper को जब आप हीट करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, you will get copper oxide. You can see that Cu plus O2 gives you CuO, copper oxide. Then similarly aluminium, when it is heated with oxygen, it combines with oxygen, okay, and forms aluminium oxide, Al2O3. Okay, तो हमने क्या देखा? that whenever metal react with oxygen, it gives metal oxide. जैसे copper oxide है, aluminium oxide है, these are metal oxides. Now some metal oxides are basic oxides. What does it mean? Basic oxides मतलब when they react with water. कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो वाटर से रिएक्ट करते हैं ना, तो क्या बन जाते हैं? बेस बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं? बेस. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम सोडियम को पहले ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, तो सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. ये तो बना मेटल ऑक्साइड. अब इसी मेटल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करो. सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है Na2O. स्टूडेंट्स, यू कैन सी द रिएक्शंस इन द पिक. सोडियम ऑक्साइड Na2O को वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं प्लस H2O to give what? Sodium hydroxide, and sodium hydroxide is a base. Okay, so students once again I am repeating these two equations कि जब सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया
तो वी आर गेटिंग सोडियम ऑक्साइड विच इज़ अ मेटल ऑक्साइड। अब इसी मेटल ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं H2O से, देन वी आर गेटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ओके, सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है K। तो पहले हम सीखेंगे दैट पोटेशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव पोटेशियम ऑक्साइड, K plus O2 gives K2O, potassium oxide. Now this potassium oxide react with water to form potassium hydroxide, KOH. ओके, तो आपने क्या देखा कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बना रहे हैं? हाइड्रोक्साइड्स, मीन्स दे आर फॉर्मिंग बेसिस। सो दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? बेसिक ऑक्साइड्स। बट देर आर सम मेटल ऑक्साइड्स, स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दैट देर आर सम मेटल ऑक्साइड्स विच शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़। ऐसे कुछ मेटल ऑक्साइड्स है जो एसिड से भी रिएक्ट होते हैं, बेस से भी रिएक्ट होते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, देर आर सम मेटल ऑक्साइड्स विच शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज एंड सच मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। Okay students, so once again there are some metal oxides which show acidic and basic properties, or you can say that there are some metal oxides which react with both acid and base to form salt and water. Such metallic oxides are called amphoteric oxides. Okay, for example aluminium oxide और zinc oxide, तो हम aluminium oxide लेके करते हैं। स्टूडेंट्स आप लास्ट के दो इक्वेशंस देखो कि aluminium oxide एक बार एसिड से रिएक्ट कर रहा है, विच एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Aluminium oxide plus hydrochloric acid react to form what? Aluminium chloride, AlCl3 plus H2O. Okay, अभी यही aluminium ऑक्साइड अभी बेस से रिएक्ट कर रहा है NaOH, दे फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस वाटर। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बार एसिड से रिएक्ट कर रहा है और एक बार बेस से रिएक्ट कर रहा है, दोनों से रिएक्ट कर पा रहा है। सो दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। Okay, this is a very important 2 mark or 1 mark question which is repeatedly asked in examination. Okay students, actually the reactivity of different metals with oxygen is different. मतलब हर मेटल एक तरह ही ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम एंड सोडियम, दे विगरसली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड कैच फायर इफ इट इज केप्ट इन ओपन। पोटेशियम या सोडियम को अगर आप ऐसे खुले में रखोगे ना, दे विल ईजिली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, एकदम स्पीडीली रिएक्ट होते हैं एंड दे कैच फायर। जैसे उसको ओपन में रखोगे सोडियम और पोटेशियम जलना शुरू कर देगा। हैंस सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, उसको केरोसिन में रखा जाता है सोडियम एंड पोटेशियम को, टू प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ देम। ओके, देन सेकेंड इज इफ मैग्नीशियम इज हीटेड, मैग्नीशियम को जब हीट करते हो ना, देन ओनली इट बर्न्स विद द ब्राइट फ्लेम, डैजलिंग फ्लेम। ये हमने चैप्टर 1 में देखा था एक एक्टिविटी में, दैट व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, इट बर्न्स विद अ ब्राइट फ्लेम। Then iron is heated, it glows brightly. If iron is heated at high temperature, बहुत ज़्यादा उसको हीट करो ना तो it glows brightly, एकदम रेड हॉट हो जाता है and it glows. Then if copper is heated, it does not burn but forms a black coating of copper oxide. जब आप कॉपर को हीट करोगे तो वो बर्न नहीं होगा, लेकिन एक क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाएगी। कॉपर जो जल जाता है बाहर से और इसका ब्लैक कोटिंग आ जाता है कॉपर ऑक्साइड। देन सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड का कोई रिएक्शन नहीं है, दे आर मेटल्स बट दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो आपने देखा पोटेशियम एंड सोडियम आर मेटल्स विच विगरसली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। देन मैग्नीशियम और आयरन को हीट करना पड़ता है ऑक्सीजन में, और सिल्वर और गोल्ड दे डू नॉट इवन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ओके, but some metals like magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. forms an oxide layer over it which prevents further oxidation. They are called self-protecting metals. जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं ना तो उनका ऑक्साइड बना देते हैं। मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बना देते हैं। एक लेयर ऑक्साइड का बन गया ना, उसके अंदर फिर और ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मतलब दे आर कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। अपने इतना बड़ा मेटल होगा, बहुत मोटा मेटल होता है, वो मेटल एल्यूमिनियम का हो या मैग्नीशियम का या जिंक का हो, अपने आउटर मोस्ट लेयर वाले मेटल को क्या करता है, वो ऑक्साइड बना देता है, ताकि अंदर का जो है वो आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो, तो प्रोटेक्टेड रहेगा। सो दीज आर कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। दे फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ ऑक्साइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ इनसाइड। ओके, so this is the first chemical property of metals, that they react with oxygen to form metal oxides. Okay students, now students let us discuss our second chemical property of metals.
The second chemical property is reaction with water. Metals usually reacts with water to form either metal oxides or metal hydroxides and hydrogen gas is released. जनरली मेटल्स जो है वाटर से रिएक्ट होते हैं, कुछ मेटल्स जो है हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, कुछ ऑक्साइड्स बनाते हैं और दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. सिमिलरली पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये दोनों भी वाटर से रिएक्ट होकर हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एल्यूमिनियम एंड आयरन, okay, last two reactions, aluminium and iron both react with water to form aluminium oxide और iron oxide. ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, ऑक्साइड्स बनाते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. ओके स्टूडेंट्स, तो पहले के 3 मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं और पीछे के 3 मेटल्स ऑक्साइड्स बना रहे हैं जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं. ओके, सो वी हैव सीन दैट द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विथ वाटर इज डिफरेंट. जैसे सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर. They are easily reacting with the water to form sodium hydroxide, you know, or potassium hydroxide, and the hydrogen gas is released and they easily catch fire also. Okay, similarly calcium, they react less violently. ये calcium react तो होता है but धीरे से react होता है to form calcium hydroxide and water. Okay, then comes magnesium, है ना, it reacts only with hot water. magnesium किससे react होता है? hot water से to form magnesium hydroxide. But metals like aluminium, zinc and iron, they react only with steam. मतलब एकदम hot water जो होता है ना, उसमें steam निकलता है to form metal oxides. ये hydroxide ही नहीं बनाते हैं oxides and hydrogen gas is released. Okay, but there are some metals like lead, copper, silver and gold, they do not react with water. ये water से react होते ही नहीं हैं. Okay students, so this is the reaction of metals with water. Now students, let us discuss the third chemical property of metals, that is reaction with acids. स्टूडेंट्स, ये हमने एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी में भी देखा था कि एसिड्स जब भी मेटल से रिएक्ट होते हैं दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, है ना. सो मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड plus hydrogen gas is released. Similarly, aluminium reacts with hydrochloric acid to form aluminium chloride, AlCl3, plus hydrogen gas is released. Zinc react with hydrochloric acid to form zinc chloride, plus hydrogen gas is released. And iron reacts with hydrochloric acid to form iron chloride, FeCl2, plus hydrogen gas is released. Now this reactivity also varies from metal to metal. Okay, magnesium is easily reactable with रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन जो है थोड़ा टाइम लगाता है रिएक्ट होने में. वाई? बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑर्डर. ओके, ये रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है ना, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. ओके, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव दैन एल्यूमिनियम, विच इज़ मोर रिएक्टिव दैन जिंक, विच इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयरन. आयरन सबसे कम रिएक्टिव है. ओके स्टूडेंट्स, सो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हमने क्या देखा कि कुछ मेटल्स जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, कुछ मेटल्स जो है बहुत कम रिएक्टिव है. जैसे गोल्ड और सिल्वर ये बहुत कम रिएक्टिव है, ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट नहीं होते हैं और वाटर से भी रिएक्ट नहीं होते एंड इवन नॉट विथ एसिड्स. ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, दे ऑलवेज रिलीज विच गैस? हाइड्रोजन गैस. So hydrogen gas is released with hydrochloric acid, but hydrogen gas is not evolved when metals react with nitric acid. When metals react with nitric acid, hydrogen gas is not evolved. Why? Because it is a strong oxidizing agent and it oxidizes the hydrogen. Nitric acid is a strong oxidizing agent. Okay, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? वाटर. क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करना मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देना. तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दोगे तो क्या मिलेगा आपको? वाटर मिलेगा. एंड इट सेल्फ रेड्यूस्ड एंड दिस नाइट्रिक एसिड इज इट सेल्फ रेड्यूस्ड टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है. ओके, सो यू कैन सी द रिएक्शन कि कॉपर जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, कॉपर एक मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, इट रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड HNO3. ओके, तो व्हाट यू आर गेटिंग कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हुआ. हाइड्रोजन गैस का क्या बन गया? वाटर बन गया. हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो गया.
ओके, नाइट्रिक एसिड ने हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडेशन करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया और नाइट्रिक एसिड का खुद का रिडक्शन हो गया और वो क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. So this is the reaction of metals with nitric acid, okay, with acids. Okay students, now students, let us discuss our fourth chemical property, okay, that is reaction of a metal with salt solution of other metal. Okay, reaction of one metal with salt solution of other metal. So actually higher reactive metal displaces the salt solution of lower reactive metal. सपोज आपके पास कोई मेटल ए है जो ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल बी से, तो मेटल ए क्या करेगा, बी के सॉल्ट सोल्यूशन में से बी को हटा के खुद का सॉल्ट सोल्यूशन बना देगा. तो सी मेटल ए प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ बी गिव्स सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी. स्टूडेंट्स यू मे बी कन्फ्यूज्ड कि ये क्या बोल रहे हैं ए बी. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जाम्पल. ओके, वी कैन सी दैट here the reaction is given for iron plus copper sulfate. Okay, iron is Fe and copper sulfate is CuSO4. Okay, here iron is more reactive than copper. Iron is more reactive than copper, so iron can easily displace copper from copper sulfate. ओके, आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा. सो द हायर रिएक्टिव एलिमेंट दैट इज मेटल दैट इज आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर सल्फेट. ओके, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड फॉर्म्ड आयरन सल्फेट, खुद का सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया. ओके, सो द रिएक्शन ऑफ हायर मेटल, हायर रिएक्टिव मेटल है ना, इट डिस्प्लेसेस द लोअर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. Okay students, for this fourth chemical property we have to discuss activity 3.12 given on page number 44 of your NCERT textbook. Here what they are asking us to do, that we have to take a iron nail and keep it in the solution of copper sulfate for some time. Okay, we all know that copper sulfate is a blue colored solution. Students, you can see in that activity. Okay, ये blue color का solution होता है, उसमें iron nail को थोड़ी देर के लिए रखो. Okay, what will happen when iron nail is kept in the copper sulfate solution? Slowly you will see that the copper sulfate solution is getting faded. जो blue color का है वो धीरे धीरे fade होते जाएगा. ओके, और क्या बन जाएगा, ग्रीन कलर का बन जाएगा. अंडरस्टूड, सोल्यूशन ग्रीन कलर का बन जाएगा. और ये जो आयरन नेल है ना, आयरन नेल जो पहले शाइनिंग था उसके ऊपर है ना रेडिश ब्राउन का डिपॉजिट आ जाएगा. और वो रेडिश ब्राउन का डिपॉजिट किसका है, कॉपर का है, वो कॉपर का डिपॉजिट आ जाएगा. अंडरस्टूड. सो दिस रिएक्शन शोज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यू कैन रीड एक्टिविटी 3.12 टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सो फार वी हैव सीन द 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स से कितने केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी, 4 केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके स्टूडेंट्स, so students, by this we end our today's session. Students, in today's session we started with our chapter number 3, that is metals and non-metals. Okay, we discussed the physical properties of metals, then physical properties of non-metals, and a very important topic, that is chemical properties of metals. Okay, पहला chemical property metals का oxygen के साथ, then with water, then with acid, and then with salt solution of other metals. So in this way we discussed 4 chemical properties of metals which are very important. एक साथ चारों कभी पूछते नहीं हैं, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है. ओके, यू हैव टू स्टडी these chemical properties of metals in detail. Okay students, meet you in the next session with the new topics. Till then, take care.